Good afternoon everyone. Welcome back to my channel, and in this video we will continue our series of modern Indian history, and today the topic that we are going to study is Anglo-Maratha War. In last video we have ended the Anglo-Mysore War series, in which all the four wars between the Mysore and the company were concluded, and today we will start the Anglo-Maratha struggle with the first Anglo-Maratha War. So the first Anglo-Maratha War took place between 1775 to 1782. It is the time period between which the second Anglo-Mysore war was also going on. The time period of Anglo-Mysore War, if you remember, was 1780 to 1784. So the 2 year overlaps in between the period of 1780 to 82 between these two wars, and the Governor General of Bengal during this time was Warren Hastings. It's an important point. It can be asked to you in any examination or in any other SSC, like SSC, NDA, or in any other competitive exam. It can be asked that who was the Governor General of Bengal during that time, during first Anglo-Mysore War. So it was Warren Hastings. So here is a question for you all. You will have to answer it in comment section, that who was the Governor General of Bengal during third Anglo-Mysore War. Okay, you can answer it in comment section. So here we continue that after the Battle of Panipat, when the Peshwa Balaji Bajirao died, his son Madhav Rao uh, ascended the throne. Means he was the one who became the new Peshwa, and he was an able ruler, a able leader. He was carrying out his rule अच्छे से, मतलब वो अपना रूल कैरी आउट कर रहे थे मराठा एम्पायर पे. लेकिन उनके जो बेटे थे, आफ्टर द डेथ ऑफ माधव राव, नारायण राव बिकेम द न्यू पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर. And Narayan Rao was basically betrayed by his uncle Raghunath Rao. His uncle Raghunath now falsely killed Narayan Rao and became the new Peshwa. रघुनाथ राव ने क्या करा कि उन्होंने नारायण राव की हत्या कर दी और वो खुद पेशवा बन गए. तो नारायण राव और उनकी जो वाइफ थी गंगाबाई, उनका एक छोटा बेटा था, एक माइनर सन था उनका, जिनका नाम उन्होंने रखा सवाई माधव राव. तो जो सवाई माधव राव था, काफ़ी मराठा पब्लिक और जनरल पीपल जो मराठा के थे, और बाकी जो मराठा चीफ थे, कि एज वी ऑल नो दैट मराठा एम्पायर वाज नॉट कंसोलिडेटेड, इट वाज नॉट सेंट्रलाइज्ड, इट वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एम्पायर्स. लाइक कोई ऐसा इलाका है जो सिंधियास के द्वारा रूल करा जा रहा है, कोई हुसालास के द्वारा, कोई गायकवाड़ के द्वारा. तो ऐसे बटा पड़ा था मराठा किंगडम 12 पार्ट्स में. तो जो 12 पार्ट्स के चीफ थे, वो सपोर्ट कर रहे थे सवाई माधव राव को टू बी अ पेशवा. दे थॉट दैट लीगली द वन हु शुड बी मेड द पेशवा वॉज सवाई माधव राव, नॉट रघुनाथ राव. वैसे भी रघुनाथ राव ने फॉल्सफुली पेशवा की जो थ्रोन थी वो हासिल करी थी. तो उसके बाद जब 12 जितने भी चीफ थे जो मराठा एम्पायर के, उनको लीड कौन कर रहा था? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेम, यू विल हैव टू रिमेंबर इट. नाना फडनविस. Nana Fadnavis was the one who was leading the other 12 Maratha chiefs, and he was the one to support Savai Madhav Rao to be the new Peshwa. On the other hand, Raghunath Rao had the support of Britishers. ब्रिटिशर्स जो थे वो रघुनाथ राव को सपोर्ट कर रहे थे. ब्रिटिशर्स में भी बॉम्बे काउंसिल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे कि हमें पता है कि 3 प्रेसिडेंसीज में, 3 काउंसिल्स में बटा हुआ था उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश कंपनी, जो कि बंगाल काउंसिल, मराठा काउंसिल एंड मद्रास काउंसिल. दीज वर द 3 काउंसिल्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ड्यूरिंग दैट टाइम. सो जो बॉम्बे काउंसिल थी ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की, वो सपोर्ट कर रही थी रघुनाथ राव को टू बी द पेशवा. इन रिटर्न इंग्लिश डिमांडेड सेलेसेट एंड बैसीन. These were the two port cities of the Maratha Empire, and these were demanded by the company in return of this favor to रघुनाथ राव. तो रघुनाथ राव ने दोनों सिटीज़ जो थी ब्रिटिशर्स को ट्रांसफ़र कर दी. और जैसे हमें पता है कि इन लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड दैट
the more port areas or the coastal areas of the Mysore were the one that were taken by Britishers. Rest of the area was divided between Marathas and Nizams. तो कोस्टल एरियाज में हमेशा ट्रेडिंग साइट में ब्रिटिशर्स का ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था, और ब्रिटिशर्स ने इसके साथ साथ एक पार्ट रेवेन्यू में सूरत और भरूच के इलाके से रेवेन्यू का कुछ पार्ट भी डिमांड करा, वो भी रघुनाथ राव ने इन रिटर्न ऑफ देयर सपोर्ट ब्रिटिशर्स को दिया, और इसको कहा गया ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 between Raghunath Rao and Bombay Council of British East India Company. In return, what English did, they provided Raghunath Rao with 2,500 soldiers. So the treaty was signed by Bombay Council of the company. The British Kolkata Council condemned the Treaty of Surat and appointed Savai Madhavrao as the Peshwa in 1776 by a treaty called Treaty of Purandar. वहीं पर जो ब्रिटिश काउंसिल थी ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की, वो सपोर्ट कर रही थी सवाई माधवराव को टू बी द पेशवा. देखिए उस वक्त क्या रहता था कि जो ब्रिटिश काउंसिल थी, तीन काउंसिल थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इन तीनों के बीच में भी आपस में सुपीरियोरिटी की रेस चलती थी कि कौन ज़्यादा सुपीरियर है, किसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा, कौन ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है. तो इन तीनों में भी आपस में एक कंपटीशन लगा रहता था. तो वहीं जहां बॉम्बे काउंसिल ने रघुनाथ राव को सपोर्ट करा, कोलकाता काउंसिल ने सवाई माधवराव को सपोर्ट करा, और उन्होंने कहा कि ट्रीटी ऑफ सूरत को हम नहीं मानते, हम कंडेम करते हैं इसको, और उन्होंने सवाई माधवराव को एज अ न्यू पेशवा इन 1776 बनाया मराठा एम्पायर का बाय ट्रीटी ऑफ पुरंदर. ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर इज इम्पॉर्टेंट, यू विल हैव टू रिमेंबर इट. ओके, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776. सो बॉम्बे काउंसिल गेव रिफ्यूज़ टू रघुनाथ राव. अब बॉम्बे काउंसिल ने क्या किया, कोलकाता काउंसिल जो थी उसने सवाई माधव राव को पेशवा बनाया, और बॉम्बे काउंसिल ने रघुनाथ राव को रिफ्यूज़ दी अगेंस्ट द विल ऑफ कोलकाता काउंसिल. Now in 1777, Nana Fadnavis violated the treaty with Calcutta by providing a port to French. ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर में क्या हुआ था, सवाई माधवराव को ये पेशवा बनाने के साथ साथ ब्रिटिशर्स उस वक्त क्या करने लगे थे, ज़्यादातर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए वो जिस भी सल्तनत के साथ, जिस भी एम्पायर के साथ कोई ट्रीटी साइन करते थे, तो वो इन रिटर्न क्या कहते थे कि आप हमें एक तो ट्रेडिंग की पावर देंगे अपने एम्पायर में, और दूसरा आप किसी और यूरोपियन कंपनी को, जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी या डच कंपनी या फिर पोर्टुगीज़ को, और किसी को इस एरिया में ट्रेड करने की अनुमति नहीं देंगे, और अगर देंगे भी, अगर कोई भी आप इनके साथ रिलेशन रखेंगे तो वो हमारे द्वारा हमारे से पूछ करके होगा. तो ये हर ट्रीटी में ये एक पॉइंट रखते ही रखते थे. आप आगे जितनी भी ट्रीटीज़ पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कि उसमें ये एक पॉइंट हर जगह होगा ही होगा. तो नाना फडनवीस ने 1777 में एक पोर्ट जो था वो फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी को ऑफ़र करा, जिसकी वजह से जो कलकत्ता काउंसिल थी ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की, वो उन्हें अच्छा नहीं लगा. वो उनको लगा कि ये वायलेशन है ट्रीटी ऑफ पुरंदर का, और व्हाट दे डिड, दे ब्रोक आउट इन वॉर विद मराठास. तो मराठास को अब इस वॉर में कौन लीड कर रहा था, मराठा अंडर महाजी शिंदे. महाजी शिंदे वॉज द वन वॉज लीडिंग द मराठा अटैक अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी, और वी कैन सी कोलकाता काउंसिल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी. And he attacked the Britishers, and Britishers surrendered against him in front of him in 1779. 1779 में जो है ब्रिटिशर्स ने सरेंडर कर दिया महाजी शिंदे के सामने, और जैसे ये सरेंडर हुआ उसके बाद ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ वडगांव. इट्स एन इम्पॉर्टेंट ट्रीटी. हालांकि इसको बाद में नल कर दिया गया था, बट it is an important treaty. It shows the competition, the race for superiority, and lack of cooperation between the Bombay Council and the Calcutta Council of British East Indian Company. बॉम्बे की जो काउंसिल थी उसने ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन करी मराठास के साथ, और उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो सेलसेट और ये जो बैसीन का जो सिटीज़ हैं जो हम आपने हमको ट्रांसफ़र करी थी, ये हम आपको वापस देते हैं, आपकी टेरिटरीज़, जो कि कैलकटा काउंसिल ने सीधा सीधा रिजेक्ट कर दी, क्योंकि पोर्ट सिटीज़ में तो ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट शुरू से ही था, और इन सिटीज़ को वापस करना कैलकटा काउंसिल को गवारा नहीं था. दे डिडेंट एक्सेप्टेड दिस ट्रीटी. एंड अनदर ट्रीटी कॉल्ड ट्रीटी ऑफ सालबाई. इट्स ए इंपॉर्टेंट ट्रीटी. एग्जाम्स में कई बार सीधी सीधी पूछी जाती है कि कब साइन हुई थी, कौन सी वॉर के बाद साइन हुई थी, फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड, हम आगे पढ़ेंगे कि 3 वॉर्स हुई थी ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में, और तीनों बार अलग अलग ट्रीटीज साइन हुई थी.
तो आपको ऑर्डर याद रखना है कि कौन सी वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी। तो जो ट्रीटी ऑफ सेल्बाई है वो साइन हुई थी 1782 में आफ्टर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। So Warren Hastings was the one who signed this treaty with Marathas, and Warren Hastings rejected the Treaty of Vadgaon, and it was proposed that Salsette should be continue to be the part of company. Salsette जो है वो कंपनी के अंडर ही रहेगा, जैसे कि वडगांव में कह दिया गया था कि इन टेरिटरीज़ को मराठास को वापस करा जाएगा। तो वेरन हेस्टिंग ने ये पॉइंट को सीधा रिजेक्ट करके सेल्सेट को जो था वो अपने अंडर ही रहने दिया। होल टेरिटरी कैप्चर्ड सिंस ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज टू बी रिटर्न टू मराठा। ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद से जितनी भी टेरिटरीज़ मराठास की कैप्चर करी गई हैं उनको वापस मराठा एम्पायर को वापस करा जाएगा। कंपनी विल नॉट सपोर्ट रघुनाथ राव एंड पेशवा विल ग्रांट हिम मेंटेनेंस अलाउंस। आगे ये इसमें प्रावधान रखा गया कि जो कंपनी है वो रघुनाथ राव को कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगी, और पेशवा को जो है वो रघुनाथ राव को एक मेंटेनेंस अलाउंस जो है उसको रहन सहन के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए वो देना पड़ेगा रघुनाथ राव को, पेशवा को। इंग्लिश विल गेट प्रिविलेज ऑफ ट्रेड एंड पेशवा विल नॉट सपोर्ट अदर यूरोपियंस। इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी को ट्रेड की प्रिविलेज दी जाएंगी मराठा एम्पायर में, और पेशवा विल नॉट सपोर्ट अदर यूरोपियंस। पेशवा अदर यूरोपियन कंपनीज़ को जैसे फ्रेंच को या डच को या पोर्टुगीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा, खाली ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेगा, और कोई भी जो रिलेशन वो रखेंगे वो खाली ब्रिटिशर्स से पूछ करके रखेंगे। So these were the point of the treaty that was signed between the Britishers and the Marathan Empire. तो आप यहाँ देखेंगे कि हालांकि वॉर हारने के बाद भी जितने भी पॉइंट यहाँ ट्रीटी ऑफ सालाबाई में रखे गए कि सेल्सेट अभी भी अंडर रहेगा ब्रिटिशर्स के, और ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी है इसको प्रिविलेज मिलेंगे मराठन एम्पायर में ट्रेड के, पेशवा अदर किसी और कंपनी के साथ रिलेशंस नहीं रखेगा, ना उन्हें सपोर्ट करेगा, ये दीज ऑल वर इन द फेवर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी। तो आप उनकी डिप्लोमेसी देख सकते हैं कि कितनी एफिशिएंटली उन्होंने वॉर हारने के बाद भी ट्रीटी को अपनी तरफ झुकाया। ट्रीटी में उन्होंने जो वो अपने तरफ रखा, उन्होंने ट्रीटी में जितने भी पॉइंट्स थे उनको उन्होंने अपनी पावर ज़्यादा रखी। दीज वर द पॉइंट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ सेल्बाई, और यही डिप्लोमेसी है जिसकी वजह से अगले काफ़ी ईयर्स तक ब्रिटिश राज इंडिया में परसिस्ट करा। So in the next video we will discuss about the second Anglo-Maratha war, and we will continue this series. Till then, thank you.